Good morning, dear children. How are you all? I hope you all are fine and doing good. So today we will going to learn a new thing in English grammar. Okay, that is how to write a sentence correctly. हम कैसे एक सेंटेंस एक वाक्य को सही से लिखेंगे and that is called also punctuation. It is called punctuation. It is a very important part in English grammar. Okay, so you have to understand it well and keep practicing. Okay, so let's start. So we'll have to follow some rules in this punctuation. जैसे आप फॉलो करते हैं स्कूल में जब आते हैं तब कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. When you come to school you follow some rules. Okay, the like you have to school on time, you have to come to school on time, you have to come to school by wearing proper uniform. Then you have to first start with an assembly, then your periods are there, like English period is on time, Hindi period is with which time, so no other teachers come and take the class. So there are some rules for you and for teachers as well. Also on road, when you go to road, when you walk on road, there are some rules. We have already studied in class 1 EVS about the rules to follow on road, like don't walk on road, walk always on footpath. Yes, so like this we have to follow some rules in English grammar also in punctuation. So I will here are some rules. There are four rules in today we will learn, and first I will tell the rules, then I will go to details. Okay, so first rule is that any name must begin with capital letter. Any name must begin with capital letter. You already know about the capital and small letter in English. हाँ, आपको small capital letter और small letter पता है इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? Yes. So first rule is any name, कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो, उसे हम उसका शुरुआत, उसका स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होगा, बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से होगा. किसी का भी नाम, मेरा नाम हुआ, आपका नाम हुआ, आपके मम्मी का नाम हुआ, आपके पापा का नाम हुआ, किसी भी टीचर का नाम हुआ, हाँ, कोई भी कंट्री का नाम हुआ, हाँ, तो हम ऑलवेज हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. एनी नेम मस्ट बिगिन विथ कैपिटल लेटर. So the second rule is every letter at the beginning of a sentence is written in capitals. Every letter at the beginning of a sentence is written in capitals. कोई भी जो सेंटेंस हम लिखते हैं उसका शुरुआत हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही करेंगे. We always begin the sentence with a capital letter. We'll never use small letter when we write a sentence. When we begin a sentence, it will be wrong. Okay, so this is the second rule. The third rule is the sentence must end with a full stop. With a full stop. Full stop का ये साइन है, एक डॉट, एक बिंदी. ओके, तो सेंटेंस जब हम खत्म करते हैं तो हमेशा हमें फुल स्टॉप लगाना है. फुल स्टॉप मीन्स दैट इज द एंड ऑफ ए सेंटेंस. ये वाक्य पूरा हो गया. ओके, इसके बाद हम कोई भी वाक्य ऐड नहीं कर सकते उस वाक्य में. So the sentence must end with a full stop. Full stop is a dot, simple एक बिंदी. हाँ, and the fourth rule is I. I. I is written in capital letter in any part of the sentence. I जो है वो सेंटेंस के किसी भी जगह में रहेगा, हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा. Only the word I. Okay, only the letter I is always in capital letter wherever in the sentence. वो जहां पर भी रहेगा आई, सिर्फ आई, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा. आई को हम स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते हैं. सिर्फ आई को हम स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते हैं. ओके, दीज आर द फोर रूल्स विच वी विल गो टू लर्न इन डिटेल्स. ओके, so the first rule I have told you that any name must begin with capital letter. किसी का भी नाम हो वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे. हम हर लेटर को कैपिटल नहीं लिखेंगे, बस पहला अक्षर किसी भी नाम का हमेशा कैपिटल में होगा, बड़े अक्षरों में होगा. ओके, so here are some examples I have given, like and the cross mark means wrong and the correct mark is means right.
ओके, सो हियर आई हैव रिटन HALDI, हल्दी। यहाँ पर हल्दी एक नाम है, हमने पढ़ा है हल्दी से एडवेंचर में, हल्दी इज ए गर्ल। सो यहाँ देखिए, लुक एट दिस वर्ड, हियर आई हैव रिटन स्मॉल h in the beginning of this name of this word, so it is wrong. Okay, so the correct one is capital H. हम जब भी नाम लिखेंगे हमेशा नाम कैपिटल में लिखेंगे, कैपिटल लेटर से शुरू होगा किसी का भी नाम। सो हियर दैट small h will become capital H and we will write the other letters as it is. Okay, यहाँ पर small h है लेकिन यहाँ पर कैपिटल H है, तो ये करेक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, ऋतु, स्मॉल r, स्मॉल i, स्मॉल t, स्मॉल u, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऋतु इज ए नेम, ऋतु एक नाम है, तो हमेशा नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा। ओके, सो लुक एट दिस, हियर मैंने स्मॉल r को कैपिटल R लिख दिया और बाकी जैसा है वैसा लिख दिया, तब ये राइट होगा। कभी भी नाम का, किसी भी नाम का पहला अक्षर स्मॉल नहीं होगा, इट विल ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। आपका भी नाम, आप जब एग्जाम पेपर या वर्कशीट में लिखते हो अपना नाम, हमेशा अपना नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना, कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, अगर हम ग्रामर अच्छे से समझ लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश या हिंदी में। तो इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, शुभम, एस स्मॉल एस, स्मॉल यू, स्मॉल बी, स्मॉल एच, स्मॉल ए, स्मॉल एम, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए नेम एंड वी नो नेम शुड स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। सो ये जो स्मॉल लेटर एस है वो कैपिटल लेटर हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा, हम सबको कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे। ओके, सिर्फ कोई भी नाम का पहला लेटर, इट विल बी इन कैपिटल लेटर्स। ओके, सो हियर दिस इज स्मॉल m, स्मॉल i, स्मॉल l, स्मॉल a, स्मॉल p, मिलाप। दिस इज रॉन्ग बिकॉज this is the name and we know the name must start with a capital letter, the name must begin with a capital letter. Okay, so करेक्ट क्या होगा, ये जो स्मॉल m है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल लेटर में होगा। ओके, तो दैट विल बी राइट। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज जॉन, स्मॉल j, स्मॉल o, स्मॉल h, स्मॉल n, जॉन, बट इट इज रॉन्ग। व्हाई? because it is a name and we know the name should start with a capital letter. okay, so the small j है वो capital J हो जाएगा और बाकी सब हम as it is लिख देंगे, तब वो right होगा। okay, next example is इरफान, small I, small r, small f, small a, small n, इरफान, but that is wrong because it is a name and name must start with a capital letter. सो जो स्मॉल लेटर आई है आई विल राइट कैपिटल आई और बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे, सो दैट विल बी करेक्ट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल नंबर 1 दैट एनी नेम मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर, मस्ट बिगिन, बस शुरुआत का अक्षर ही कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। ओके, उसी तरह आपके टाइटल, आपका सरनेम जो होता है वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर होगा। ओके, so moving to rule 2 and 3, these two rules are in conjunction, मतलब दोनों ही एक साथ हम पढ़ेंगे। okay, so what is the rule? that every letter at the beginning of a sentence is written in capital letter, every letter at the beginning of a sentence is written in capital letter, मतलब कोई भी वाक्य का, कोई वाक्य जब हम लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, उसका सबसे पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में शुरू होगा। ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, कभी भी जब हम एक सेंटेंस लिखेंगे, वाक्य लिखेंगे इंग्लिश में, वो कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। ओके, चाहे वो नाम हो या कोई भी अक्षर हो, हमेशा उसका पहला लेटर, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे। ओके, एंड रूल नंबर 3 इज एंड द सेंटेंस मस्ट एंड विथ ए फुल स्टॉप,
मस्ट एंड विथ ए फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप एक बिंदी होता है, जस्ट एक बिंदी, डॉट। ओके, दैट इज फुल स्टॉप। तो जब भी हम एक सेंटेंस को शुरू करेंगे उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, और जब भी हम इस सेंटेंस को खत्म करेंगे उसके बाद एक फुल स्टॉप का साइन लगाएंगे। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके पीछे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार हम अगर फुल स्टॉप लगा देंगे उसका मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वी कैन नॉट ऐड एनी अदर letters or words in that sentence. That sentence is complete. तो कभी भी जब भी आप whenever you write a sentence, the sentence must start with a capital letter and must end with a full stop. You have to take care of all these things because it is very important in English grammar. आपको ये पूरा जिंदगी भर फॉलो करना है। ओके, दिस इज योर बेसिक थिंग्स। ये आप क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 जब भी पढ़ोगे ये सिर्फ फिर से पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा। ओके, सो these are two rules. Every letter at the beginning of a sentence is written in capital letter and the sentence must end with a full stop. So here are some examples I have given. So please look at the examples. So the first example is my name is Milap. Okay, but ये एक सेंटेंस है, लेकिन देखो सेंटेंस का शुरू स्मॉल लेटर से हुआ है। ओके, और इसका एंड में मतलब आखिर में कोई भी फुल स्टॉप नहीं लगा है। इसका मतलब ये रॉन्ग सेंटेंस है, ये रॉन्ग लिखे हो, तो इसको हमको करेक्ट करना है। तो करेक्ट क्या होगा? ये सेंटेंस का पहला लेटर दैट इज स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम हो जाएगा। उसके बाद जैसा है हम लिख देंगे मिलाप। मिलाप एक नाम है, तो नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, तो मैंने कैपिटल कर दिया। और यहाँ मिलाप के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन मैं इन्हें यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। ओके ओके, तो दैट इज माई नेम इज, इसको भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे जिसको इस सेंटेंस से पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्टली लिखा गया है, क्योंकि हम रूल है कि जब भी कोई सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे दैट विल स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड विथ ए फुल स्टॉप। और कोई अगर नाम है तो नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। तो माई नेम इज मिलाप, फुल स्टॉप, डॉट, बिंदी। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। ओके, सो द सेकंड एग्जांपल इज हल्दी इज गोइंग टू स्कूल। हल्दी इज गोइंग टू स्कूल, बट मुझे पता है कि रूल नंबर 1 में हमने कहा पढ़ा था कि कोई भी नाम हमेशा पहला अक्षर से स्टार्ट, कोई भी नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो नाम स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या आखिर में हो। नाम, किसी का भी नाम हम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। अगर हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे तो दैट इज रॉन्ग। ओके, सो तो हियर, और ये वाक्य है, वाक्य का पहला अक्षर भी कैपिटल होना चाहिए, तो हमने ये स्मॉल एच को कैपिटल कर दिया और बाकी एज इट इज लिख दिया। और स्कूल के बाद यहाँ कोई फुल स्टॉप नहीं था, यहाँ मैंने ये फुल स्टॉप लगा दिया। इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, मतलब पूर्ण विराम। हिंदी में आप एक लाइन खींचते हैं, वो हिंदी का फुल स्टॉप है, ये इंग्लिश का फुल स्टॉप है। ओके, हिंदी में भी आपको व्याकरण आना है, आपको भी हिंदी में भी ये पंचुएशन जानना है। तो हिंदी का हम नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इंग्लिश। so like this. So Haldi is going to school. Here this is a sentence, and according to rule 2 and 2 the sentence must begin with a capital letter. So हमने ये small h को कैपिटल कर दिया। और रूल नंबर 3 बोलता है कि सेंटेंस मस्ट एंड विथ ए फुल स्टॉप। सो हमने ये जब सेंटेंस कंप्लीट हुआ आखिर में ये फुल स्टॉप लगा दिया, तब ये सेंटेंस हमारा राइट हो गया। ओके ओके, सो द थर्ड एग्जांपल इज द बेल्स आर रिंगिंग। द बेल्स आर रिंगिंग। इधर देखिए, लुक एट दिस सेंटेंस। यहाँ पर गलती क्या है आप सोचो। यस, ये एक सेंटेंस है और सेंटेंस का पहला अक्षर, ये वाक्य है, वाक्य का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ओके, वाक्य का पहला अक्षर ये हमेशा कैपिटल लेटर होगा। तो ये स्मॉल टी है, उसको मैंने कैपिटल कर दिया, बाकी सब ऐसा लिख दिया। और सेंटेंस के बाद में और एक रूल है कि सेंटेंस के बाद में हमेशा फुल स्टॉप लगना है। सो मैंने यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप। ओके, और यहाँ पर कोई नाम नहीं है कि बेल्स कोई नाम है क्या?
नहीं है, तो ये कैपिटल नहीं होगा। अगर किसी का नाम होता तब वो नाम का पहला अक्षर मैं कैपिटल लिखता, लेकिन यहाँ किसी का नाम नहीं है। सो सिर्फ ये सेंटेंस है, सेंटेंस का पहला लेटर को मैंने कैपिटल में लिख दिया, बड़े अक्षर में लिख दिया, और सेंटेंस के आखिर में मैंने एक डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इट इज कंप्लीट। हम इसमें कोई भी वाक्य अभी ऐड नहीं कर सकते हैं, या कोई भी अक्षर या कोई भी वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है, फिर उसके बाद से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा, तो वो जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखूंगा उसका पहला अक्षर भी कैपिटल होना चाहिए। तो ऐसा ये जाता है। अब आप अपने टेक्स्ट बुक, आप जो हल्दी एडवेंचर पढ़ा उसमें भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसमें भी हर फुल स्टॉप के बाद एक जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल लेटर से हो रहा है। ओके, तो आपको हर लाइन हर वर्ड कुछ ना कुछ कहता है, तो आपको ध्यान से हर वर्ड को देखना है ना, समझ समझ के पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझ के पढ़ना है। अगर आप समझ के नहीं पढ़ेंगे हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, सो मूविंग टू फोर्थ एग्जाम्पल, example number 4, he has two pencils, he has two pencils, but this sentence is wrong. Come on, tell me guys, why it is wrong? Come on, yes, this is a sentence, and according to the rules we know that the sentence must start with a capital letter, but here h is not in capital letter, so it is wrong. So हमने क्या किया, we write this small h in capital H. ओके, और क्या गलती है ये सेंटेंस में, कि ये सेंटेंस हमने रूल पता है कि एक सेंटेंस हमेशा एंड होता है फुल स्टॉप से। सो हमने दिस सेंटेंस हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ओके, आपने ये एच लिख कैपिटल करोगे और फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तब वो कट जाएगा मार्क। ओके, सो यू हैव टू वेरी कॉशियस, यू हैव टू अंडरस्टूड दिस रूल्स वेल। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। आप अपने किताब में देखिए, किसी भी किताब में, इंग्लिश किताब में देखो, हमेशा कहीं पर भी देखिए, द सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप। अगर नहीं है तो दैट सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, तो ये दो रूल थे। मूविंग टू द लास्ट रूल, दैट द लेटर I is written in capital letter in any part of the sentence. जो लेटर I है, सिर्फ लेटर I, हाँ, जो लेटर सिर्फ लेटर I है वो सेंटेंस के किसी भी जगह में रहेगा तो हमेशा वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। अगर मैंने उसको स्मॉल लेटर में लिखा सिर्फ I को, तो दैट विल बी रॉन्ग। सो कैपिटल लेटर I, sorry, the I word is always written in capital letters wherever it may be in sentence. Okay, so look at the example. The first example is I am studying in class 2. I am studying in class 2. तो यहाँ पर क्या क्या गलती है, कौन बताएगा? सोचो सोचो। Yes, come on. Yes, ये एक सेंटेंस है, हमको पता है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कि सेंटेंस हमेशा द सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। सो हियर द स्मॉल लेटर आई विल बिकम कैपिटल लेटर आई। ओके, सिर्फ आई, देखो यहाँ स्टडिंग में भी आई है, लेकिन इसको मैं कैपिटल में नहीं लिखूंगा, है ना। मैं जो सिर्फ लेटर आई जो होगा वो सेंटेंस का कहीं पर भी होगा, शुरू में होगा, बीच में होगा या लास्ट में होगा, हमेशा उस सिंगल आई को मैं हमेशा कैपिटल लेटर में लिखूंगा। तो ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस का लेटर, सेंटेंस का स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। सो दिस स्मॉल आई बिकम्स कैपिटल आई एंड आई विल राइट दिस ऑल द सेंटेंसेस, ऑल द वर्ड्स एज इट इज, बिकॉज देयर इज नो नेम। अगर नेम होता, किसी का नाम होता, तो मैं उस नाम का पहला अक्षर कैपिटल में लिखता, लेकिन यहाँ कोई नाम नहीं है, सो यहाँ कुछ कैपिटल में नहीं होगा, सब कुछ स्मॉल में हुआ। और जब सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो मैंने यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा दिया, एक डॉट लगा दिया, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। ओके, हाँ, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम ईटिंग मैंगो। आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूं। ये एक सेंटेंस है, हमको पता है कि सेंटेंस का पहला अक्षर, सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। सो यहाँ पर कैपिटल लेटर है ये आई नहीं है, तो ये रॉन्ग है।
तो ये आई को मैंने कैपिटल आई लिख दिया और बाकी वैसा लिख दिया, और ये सेंटेंस के बाद में मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। तो आई एम ईटिंग मैंगो, ओके, आई एम ईटिंग मैंगो, फुल स्टॉप। तो ये करेक्ट सेंटेंस बन गया। थर्ड एग्जाम्पल लुक, इफ यू राइड ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट। इफ यू राइड ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट, ये सेंटेंस मैंने आई हैव टेकन दिस सेंटेंस फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 हल्दीज एडवेंचर। उसमें ये सेंटेंस है, किसने कहा है? कैन यू गेस? इफ यू राइड ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट, हु सेड दिस लाइन? यस, जिराफ, स्माइली has said this line. So in this sentence, look, in this sentence, is this sentence begin with a capital letter? No, so it is a wrong sentence. Okay, so you have to make it right, and if to make it right we have to make this small letter I capital. Okay, so मैंने क्या किया, small letter I को capital लिख दिया और फिर मैंने sentence लिखा, if you ride on my back। देखो I इधर है, सिंगल लेटर आई है, और हम इस रूल अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 आई इज रिटन इन कैपिटल लेटर इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के किसी भी जगह में रहेगा अगर लेटर आई, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। तो मैंने इस आई को भी कैपिटल कर दिया और बाकी लिख के लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप लगा दिया मतलब उस वाक्य पूरा हो गया। ये लाइन मैंने आपका टेक्स्ट बुक से लिया है, यू कैन चेक, यू कैन मैच विद द टेक्स्ट बुक दैट आपके टेक्स्ट बुक में ये बीच वाला आई कैपिटल है ना स्मॉल है। दीज आर द रूल्स, छोटे छोटे चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखना है। वी हैव टू टेक केयर दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, है ना। दिस इज ग्रामर, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, if you want to excel in English you have to understood the grammar very well, you have to practice, this all needs practice। जितने आप प्रैक्टिस करोगे घर में, जितने एग्जाम्पल्स करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप किताब देखिए, बुक देखिए, उसमें खोजिए कि जो वाक्य सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या वो कैपिटल से हो रहा है या स्मॉल से हो रहा है। लेटर आई सेंटेंस का किसी भी पार्ट में है, वो स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है, और सेंटेंस जब खत्म हो रहा है उसको हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। आप खुद किताब में खुद खोजो और खुद सीखिए, है ना। ओके, सो तो मैंने इस सेंटेंस में आई को कैपिटल कर दिया और बीच में जो भी जो आई था उसको ही मैंने कैपिटल कर दिया और लास्ट में एक फुल स्टॉप लगा दिया। फुल स्टॉप मतलब इसके बाद और कोई इस सेंटेंस में ऐड नहीं हो सकता। अगर हमें लिखना है तो यू हैव टू राइट इन अनदर सेंटेंस एंड दैट सेंटेंस ऑल्सो विल स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। जितने भी वाक्य लगेंगे बनेंगे वो सब सेंटेंस बनेंगे, वो सब स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर में। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वुड लव टू टॉक टू स्माइली बट आई मस्ट रश टू स्कूल। ये भी मैंने आपका टेक्स्ट बुक से लिया है, बताइए, कम ऑन टेल मी हु टोल्ड दिस लाइन्स। आई वुड लव टू टॉक टू स्माइली बट आई मस्ट रश टू स्कूल। यस, दिस लाइन्स सेड बाय हल्दी। सो एक सेंटेंस है, ये एक वाक्य है, हमको पता है अकॉर्डिंग टू रूल्स वी नो दैट द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद a कैपिटल लेटर, बट इज दिस सेंटेंस बिगिन विद a कैपिटल लेटर? क्या ये सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है? नहीं, यहाँ तो ये आई स्मॉल है, तो मतलब दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। तो हमको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस आई को हमने कैपिटल में लिख दिया। आई वुड लव, देखो स्माइली, स्माइली एक किसका नाम है? जिराफ का नाम था, तो ये एक नाम है, तो ना हमने अकॉर्डिंग टू रूल एनी नेम मस्ट बी स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर। तो ये स्मॉल एस, स्माइली का स्मॉल एस को मैंने कैपिटल कर दिया, इजंट इट? तो मैंने कैपिटल कर दिया और बाकी लिख दिया। बट आई, और एक देखिए यहाँ पर आई है, स्मॉल आई है, लेकिन हमने और एक रूल क्या है कि आई सेंटेंस के किसी भी जगह में होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। सो ये आई भी कैपिटल हो गया और बाकी सब मैंने लिख के स्कूल के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। सो अभी ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। आप सेंटेंस का स्टार्टिंग को कैपिटल लिखोगे और लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाओगे, लेकिन बीच वाले आई को आप स्मॉल में लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। आई कभी भी स्मॉल, द लेटर आई विल नेवर बी इन स्मॉल लेटर इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द लेटर आई मस्ट बी इन कैपिटल लेटर।
wherever it may be in the sentence. Okay, so these four rules you have to follow. You have to understood it, you have to understand it well. At home you have to practice. The more you practice, the more you will get to know better. Okay, so these four rules आपको पढ़ना है और आपको एग्जाम्पल भी घर में करना है। आपकी किताब देखना है, आपको बुक्स खोल के बुक में देखना है, मैच करना है कि मैंने जो ये रूल्स बताया क्या वो सही है या गलत है। आप बुक का किसी भी चैप्टर को खोल लीजिए और देखिए कोई भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल में स्टार्ट हो रहा है क्या, किसी का भी नाम किताब में लिखा है, हाँ क्या वो कैपिटल लेटर में स्टार्ट हो रहा है क्या, और कोई भी सेंटेंस जब खत्म हो रहा है तो क्या वो फुल स्टॉप वहाँ लग रहा है क्या, और आई सेंटेंस के किसी भी पार्ट में हो क्या वो कैपिटल में लिख रहे हैं क्या, सिर्फ लेटर आई। तो आप देखोगे कि हर जगह आपके इंग्लिश बुक का कोई भी चैप्टर खोल लो कि आप देखोगे कि ये रूल्स फॉलो हो रहा है। तो how to write a sentence correctly, we need to know the punctuation. Okay, तो आपको ये पढ़ना है घर में, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, और यू go through this video if you want to more. So I will give worksheet on basis of this. So thank you very much.